अगर कोई यूट्यूबर आपको ऐसा बोल रहा है तो समझ लेना रेड फ्लैग। बट इफ यू प्रॉमिस मी टू फाइट हार्ड फॉर बिटसाइट एंड यू कैन अचीव योर गोल। आई डोंट वांट टू सेल कि आप 10 दिन में 310 320 नंबर ला सकते हो इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। इट्स कम्प्लीटली बुलशिट। जो चैप्टर्स आपको आते हैं ना उन्हें बार बार रिवाइज नहीं करना है। सिलेबस कम्प्लीशन, डेली रिविजन एंड डेली मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, ये तीनों चीजों में आपको टाइम डिवाइड करना पड़ेगा। आर यू टायर्ड ऑफ वॉचिंग काउंटलेस वीडियोस, जंपिंग फ्रॉम वन स्ट्रेटेजी टू अनदर एंड स्टिल अनश्योर अबाउट क्रैकिंग बिटसाइट 2025? Trust me, I have been there and I know how confusing it gets. But here is the good news. This is the only video which you need to crack बिटसाइट 2025. I have covered everything in this video. ये वीडियो हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर बनाई गई है। And by the end of this video, you will feel more confident and more prepared than ever before. So hello guys, for those who don't know me, I am Pratham, 4th year undergraduate at BITS Pillar. I scored 240 in JEE Mains and 310 in BITSAT and got into my dream college BITS Pilani. And currently in my 4th year, I got my placement offer. So BITSAT 2025 is coming closer. And अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, means zero preparation, तो let me be very honest with you guys. It's tough for you to crack BITSAT. I am not here to demotivate you, but I am just telling you the reality. I am not telling it's impossible, but it will be tough for you. But if you promise me to fight hard for BITSAT, then you can achieve your goal. So before starting this video, I want you to keep these 3 points in your mind. First, don't follow this video blindly. In my every video, I give general idea कि how you can proceed from your current preparation. वो proceed कैसे करना है, this is what you have to decide. तो हर चीज को समझना और ये देखो कि आप बचे हुए टाइम को कैसे यूटिलाइज करोगे। Also, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो how will you plan your remaining time. Second and the most important point. See, हम सब लोग भी आपके जैसे ही कुछ सालों पहले बिटसैट जेईई की एग्जाम्स दे रहे थे, but during our time, no one was there to guide us. But for you guys, me and some of my BITSians and IITians friends started a free Crack It mentorship program in which we will guide you. Every week we conduct a meet to help students, and believe me, this can be a game changer opportunity for all of you. So you can fill out the form in the description. We will add you in the Crack It free mentorship program. Third, इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आधी अधूरी वीडियो देख के जाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। सबसे पहले आई वुड लाइक टू शेयर मैंने अपने टाइम पे क्या क्या किया था। आई डोंट वांट टू सेल कि आप 10 दिन में 310 320 नंबर ला सकते हो इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। इट्स कम्प्लीटली बुलशिट। अगर कोई यूट्यूबर आपको ऐसा बोल रहा है तो समझ लेना रेड फ्लैग। अगर मैं खुद की बात करूं तो मैं पहले ही बता दूं कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी थी। मेरा ऑलमोस्ट 90 to 95% ऑफ द सिलेबस हो चुका था। तो जो स्टूडेंट्स इस लेवल पे तो उन्हें बता दूं आपको बस अभी मॉक टेस्ट देना है, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देने हैं और जितना टाइम बचा है सब रिवीजन में लगाना है। रिवीजन आप अपने शॉर्ट नोट से करना। अगर अभी तक नहीं बनाए होगे तो आई विल सजेस्ट यू कि बना लो। रही बात मॉक टेस्ट की कौन सी मॉक टेस्ट देना चाहिए, मी एंड सम ऑफ माय BITSians and IITians friends designed a Crack It BITSAT test series, most affordable test series in the market, and we all know what it takes to crack BITSAT. And the best thing about Crack It test series is that आपको एनालिसिस तो मिलेगा ही, बट उसके साथ BITSians से एक पर्सनलाइज्ड प्लान मिलेगा आपको कैसे पढ़ना है, आगे कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, so that you can improve in your upcoming mock test and gradually touch a score of 300%. ये मॉक टेस्ट हम खुद BITSians ने बनाई है। We know exactly कि पेपर किस तरह होता है, what should a student keep in his mind to achieve a great score in BITSAT। ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही Crack It की टेस्ट सीरीज बनाई गई है। मैं भी अपने टाइम पे यही करता था, मॉक टेस्ट देता था और उसे एनालाइज करता था और रिवीजन करता था। एक और चीज याद रखना, जो चैप्टर्स आपको आते हैं ना उन्हें बार बार रिवाइज नहीं करना है। आपको मॉक टेस्ट से ये समझ जाएगा कि आप कौन से चैप्टर में वीक हो। एक पेन और पेपर लो और अपने स्ट्रॉन्ग और वीक चैप्टर्स को सेपरेट करो और ट्राई करो कि आप अपने वीक चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर दो बचे हुए टाइम में। हर एक मॉक टेस्ट को देने के बाद अच्छे से एनालाइज करो, एक सेपरेट नोटबुक बनाओ। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि गलतियां कहाँ हो रही है, या मैं स्पीड में कम हूँ या फिर मेरी एक्यूरेसी कम है, ये आपको फिगर आउट करना है। अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो और उन पे काम करो। इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग आप लोगों का मोस्टली मॉक टेस्ट से इंप्रूव हो जाएगा। बाकी मॉक टेस्ट से डिमोटिवेट नहीं होना है। जितनी ज्यादा गलतियां कर रहे हो इसका मतलब आप उतना सीख रहे हो और एक्चुअल एग्जाम में वो गलतियां आप नहीं करने वाले। सो बी हैप्पी अबाउट। जैसे बिटसैट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग आता है, वैसे ही एनसेट में मैथ, जनरल एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश आता है। इसका मतलब ये है कि आपकी बिटसेट के साथ एनसेट की भी प्रिपरेशन हो रही है। एनसेट एग्जाम इज गोइंग टू हैपन ऑन 13 and 31st of May. Last year, many students left their seats from IITs and NITs to get admission into Newton School of Technology. And in today's era, where world is growing towards AI, so branches like CS and artificial intelligence are very important. And in this field, Newton School of Technology is considered to be the topmost institute with most advanced curriculum followed till date. And teachers
speakers here are from top MNCs and startups who were ex-tech professional in the companies like MakeMyTrip, Cisco, Barclays, Zepto, and Google. Students who are studying in first and second year here are getting internships in the companies like Razorpay, Zoomcar, Davam.ai, Movensing, and other companies. बाकी ग्लोबल एक्सपोजर की बात करें तो ये अपने सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को सिलिकॉन वैली एंड सिंगापुर जैसे प्लेसेस पे टेक कॉन्फ्रेंसेस एंड स्टडी ट्रिप्स के लिए ले जाते हैं। एनएसटी की डिमांड इंक्रीज हो चुकी है, सो इनका नेक्स्ट कैंपस दिल्ली एंड पुणे के बाद बैंगलोर में लॉन्च हो रहा है। यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर एनसेट टू गेट एडमिशन इनटू न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनका सिलेबस 70% हो चुका है और उन्हें इस टाइम पे क्या करना चाहिए। तो जो स्टूडेंट्स इस कैटेगरी में आते हैं ना, मैं उन्हें बता दूं कि आपको काफी मेहनत करने की जरूरत है। सिलेबस कंप्लीशन, डेली रिवीजन एंड डेली मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, ये तीनों चीजों में आपको टाइम डिवाइड करना पड़ेगा। सी, अब आप लोगों को स्मार्टली चैप्टर्स कवर करने पड़ेंगे टू सेव योर टाइम। वो कैसे करोगे? डोंट वरी अबाउट इट, आई एम हियर। सबसे पहले अभी मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की एक लिस्ट बताऊंगा चैप्टर्स की, और आपको देखना है कि इनमें से कौन से चैप्टर्स अभी तक आपने कवर नहीं किए। फॉर फिजिक्स, सो यू कैन स्टार्ट विथ हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, देन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन एसएचएम, वेव्स मोशन, फ्लूइड्स, इलेक्ट्रोस्टैट्स, और ग्रेविटेशन भी कर देना क्योंकि वो मोर और लेस सेम ही है। एंड लास्टली रोटेशनल मोशन। फॉर केमिस्ट्री, स्टार्ट विथ केमिकल बॉन्डिंग, देन बायोमोलिक्यूल्स, देन पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, अल्केन, अल्केन्स एंड अल्काइंस। फॉर मैथ्स, स्टार्ट विथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें भी सर्कल्स एंड स्ट्रेट लाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, देन ट्रिग्नोमेट्री, देन वेक्टर्स एंड डिफरेंशियल कैलकुलस, और मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट भी इजी है तो वो भी कर देना, एंड प्रोबेबिलिटी। जो चैप्टर्स नहीं करे उनके वन शॉट लेक्चर्स देखना स्टार्ट कर दो। एक्चुअली सब बोलते हैं कि वन शॉट लेक्चर्स जो रिवीजन के लिए होते हैं। यस, आई एग्री विथ इट, बट कुछ चैनल्स पे वन शॉट इतने अच्छे से पढ़ाए गए हैं ना कि अगर आप फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हो तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ जाएगा। आप ये वीडियो देख सकते हो फॉर द वन शॉट्स विच यू नीड टू फॉलो। बाकी थ्योरी होने के बाद दिन में जब जब टाइम मिले तो आप इन चैप्टर्स की प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर रहे। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वीक में एटलीस्ट 3 मॉक टेस्ट तो देने ही है। अब इन मॉक टेस्ट में वो चैप्टर से भी क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपने अब तक पढ़े भी नहीं है, तो उनको आप नोट कर लेना अच्छे से, देखना उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है और वो फॉर्मूला आप कैसे यूज कर सकते हो। बस इतना सीखना है आपको ताकि आप एक्चुअल एग्जाम में सेम टाइप का क्वेश्चन बना सको बिना वो चैप्टर पूरा पढ़े। बाकी आप लोगों को रिवीजन सेम तरह से करनी है जैसे फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को करने के लिए कहा गया। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनका सिलेबस 50% या उससे कम हुआ है। तो देखो बच्चों, आपके लिए मैं ये कहूंगा कि जितनी मेहनत कर सकते हो ना फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए तो वो कर लो ताकि आपको वो सेकंड अटेम्प्ट में काम आ जाए। आपका मेजर फोकस सेकंड अटेम्प्ट पे ही होना चाहिए। बिकॉज आज मैं आपको कितना भी मोटिवेट कर लूं कि आपका 50% में बिटसेट क्रैक हो जाएगा एंड ऑल, तो यार मैं गलत कर रहा हूँ। आई डोंट वांट टू गिव यू फॉल्स होप्स। मुझे बस आपको रियलिटी चेक देना है कि काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो काफी मेहनत कर रहे हैं टू गेट इनटू दिस कॉलेज। सारा गेम कॉम्पिटिशन का है, हर दूसरा बंदा आपकी सीट लेने के लिए तैयार बैठा है। तो इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स से मैं बस यही कहूंगा कि आप अच्छे से पढ़ लो अभी ताकि आप सेकंड अटेम्प्ट में बिटसेट क्रैक कर सको एंड ऑल्सो आपको बाद में रिग्रेट ना हो। साइड बाय साइड सिलेबस कंप्लीट करना स्टार्ट कर दो और न्यू चैप्टर्स की प्रैक्टिस भी साथ में ही करना ताकि आपकी ग्रिप बनी रहे। एंड डेफिनेटली जो चैप्टर्स हो चुके हैं उनको तो कंटिन्यूअसली रिवाइज करते ही रहना है आप लोगों को। Baki, I don't want to keep this video long. Also, don't forget to join Crackit's free mentorship program and check out Crackit's test series. It will definitely help you, and I mean it. अब आप मुझे comments में अपना प्लान शेयर कर दो और आप मुझे बताओ कि आप आगे कैसे प्रोसीड करने वाले हो। So ज्यादा टेंशन मत लो, मेहनत करते रहो. You will definitely crack it. Best of luck, guys. See you in the next video. तब तक के लिए, bye bye.